Hi students. So in the last lecture we completed investment decisions and cash flows also. We completed cash flow as well, important cash flows and investment decisions and all. So now the new topic, I'm going to share my screen. Okay, so the is my screen visible now to everybody? Can you see my screen? Yes, ma'am. Can you see my screen? Can I get Yes, a ma'am. Okay. So this is the topic today: capital budgeting, its methods, and risk analysis in capital budgeting. So these basically are two topics, two different topics in your syllabus. One is capital budgeting and risk analysis. So both the things we will be covering in the same PPT. In today's week, I'm targeting that in this week we will be covering these two topics, these both topics. Although it is a very lengthy topic, but we would try to cover it. So अगर किसी को पुराने टॉपिक में कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो मुझे बता दीजिए, then I'll just start with this new one. Okay, so I'm starting with this capital budgeting and its method and risk analysis. So before we move ahead with what is capital budgeting, we should know that what exactly is an investment, because capital budgeting is basically the investment. Capital budgeting is basically we will come to the capital budgeting also. Firstly, we should understand what is an investment. So in our subject in finance, the investment basically is a monetary asset purchased with the idea that the asset will provide income in the future or will later be sold at a higher price for a profit. So in finance or in financial management terminology, we understand that anything where we invest our monetary asset that is money, cash, or anything which is equivalent to cash, if we invest that and purchase any asset or any income or any idea also through which we will be able to earn the returns in future, to earn the returns in the form of profit or just give me a minute. So basically an investment means that anywhere we are making some monetary investment, some money we are investing, and we will earn some returns on the basis of that, and that returns will be earned in future, not today but in future. So that is an investment. Okay, it can also be sold later at a higher price or a profit also. For example, we buy some property today, we think that this is the property which we are getting, we would be able to invest today, and maybe after 5 years or 10 years down the line we would be able to sell that same property at a profit, at a higher rate. So that is also an investment. In business, anything which we are investing in any asset, can be your land or machinery which we are buying or purchasing for the betterment of the business, is investment in finance or in business. Now इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट तो हो गया कि इन्वेस्टमेंट हमने जब भी कभी हमने पैसा कहीं पर इन्वेस्ट किया, इज दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड इट विल बी गिविंग अस रिटर्न इन फ्यूचर. बट इन्वेस्टमेंट को करने से पहले हमको एनालिसिस भी करना चाहिए. सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट एनालिसिस? वो क्या होता है? इट इज बेसिकली अ प्रोसेस टू इवैल्यूएट वेदर द इन्वेस्टमेंट
इज प्रॉफिटेबल और नॉट, पहली चीज कि उसमें कितना प्रॉफिटेबिलिटी है, दूसरा रिस्क कितना इन्वॉल्व है। जब भी हम कभी किसी इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करते हैं तो हम दो चीजों को फैक्टर करते हैं, प्रॉफिट को और रिस्क को। प्रॉफिटेबिलिटी जिस इन्वेस्टमेंट में ज्यादा है और रिस्क जिस इन्वेस्टमेंट में कम है, हमें वो इन्वेस्टमेंट को चूज करना चाहिए। सो इफ वी हैव गॉट 2-3 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस और से एम्पल ऑफ द ऑप्शन और मल्टीपल ऑप्शंस वेयर वी हैव टू चूज कि हमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कि हमारे पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के लिए लिमिटेड कैश या फंड है, लेकिन हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो फिर हम एनालिसिस करके चूज कर सकते हैं कि बेस्ट हमारे लिए कौन सा ऑप्शन जिसमें हम इन्वेस्ट करें। तो वो एनालिसिस किस तरीके से करेंगे, वी विल इवेल्युएट profit should be highest and risk should be minimum in whatever project or in whatever investment we would find this, we would be able to choose that. So investment analysis basically is a process which is uh, helpful in which is basically a process for the evaluation of the investment in order to calculate the profit and the risk of it. Now, what is capital budgeting? Capital budgeting, this topic basically is consisting of two words. Capital is basically the investment which is done, and budgeting is to have a budget for the same, whether in whatever जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, buying any asset or anything, तो हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। इसी तरह से हम कैपिटल में जब इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट विच कंपनी और द फाइनेंशियल मैनेजर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर। उसका ये भी इम्पोर्टेंट रोल है कि वो कैपिटल हम कितना रखेंगे, कैसे रखेंगे, किस प्रोपोर्शन में रखेंगे, किस रेशो में रखेंगे, कितना रखेंगे, और इन्वेस्टमेंट की क्या कॉस्ट भी है, क्योंकि एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अर्लियर ऑल्सो कि अगर हम कोई कैपिटल रेस कर रहे हैं मार्केट से, सो इट विल कम विद अ कॉस्ट। तो वो कॉस्ट का भी एनालिसिस हमको करना है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है। So that is, so capital budgeting basically is defined as the firm's formal process, कि किसी भी कंपनी का प्रोसेस जो डिफाइन कर चुकी है ऑलरेडी मैनेजमेंट कि हम किस तरह से करेंगे, इज दी प्रोसेस फॉर द एक्विजिशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। नाउ कैपिटल हमारे पास आ गई है, लेकिन अब हम फर्दर उसका इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट क्या है मैंने वो आपको पहले ही बता दिया। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हम करेंगे, उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसलिए हमने इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट एनालिसिस पहले ही पढ़ लिया है। What is investment and then how analysis would be done. Analysis would be done by checking the profit and the risk. So capital budgeting is the process defined by any organization in order to acquire and invest the capital raised from the market. तो कोई भी जो हमारे पास कैपिटल आ चुके हैं, वो उसको कहाँ पर खर्च करेंगे, कितना कहाँ पर लगाएंगे, क्या परचेज करेंगे कि हमारा फ्यूचर में उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को करने से प्रॉफिट हो और हमारा इतना प्रॉफिट हो कि हम बिजनेस को रन भी कर सकें, is what capital budgeting is. ठीक है, it involves firm's decision to invest its current funds for addition, disposition, modification, replacement of fixed assets. मतलब current assets में हम invest, current funds जो हमारे पास हैं वो हम fixed assets में invest करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास लॉन्ग टर्म में जो यूज होने वाले हैं वो एसेट्स हैं, तो हम उनमें से कौन से हम ऐसे एसेट्स हैं जिनको हम आज खरीदें कि हमें फ्यूचर में या लॉन्ग टर्म में ओवर पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेटिवली एनुअली बार बार हमें उस पर प्रॉफिट होगा। दोज आर कॉल्ड द फिक्स्ड एसेट्स। और हमें अपना जो आज का हमारे पास फंड है, करंट जो हमारे पास फंड है, उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं टू बाय दी फिक्स्ड एसेट्स। तो बेसिकली इसमें इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल बजटिंग में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स में, और हम ये भी डिराइव कर रहे हैं कि हमें फ्यूचर में उस इन्वेस्टमेंट से कितना ज़्यादा फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है और कितने सालों तक होता रहेगा। सो इट इज़ अ प्लान्ड प्रोसेस यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर एन ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे मशीनरी हो गया या मशीनरी को रिप्लेस करना हो गया, या कहीं न्यू प्लांट बनाना हो गया, या कोई न्यू लैंड परचेज करना हो गया, न्यू ऑफिस बनाना, न्यू फैक्ट्री स्टैब्लिश करना, कोई भी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, या कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें कि लॉन्ग टर्म का काम होगा और लॉन्ग टर्म में हमको रिटर्न आते रहेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट एक ही बार करना पड़ेगा और ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, दैट इज कैपिटल बजटिंग। तो बेसिकली कैपिटल बजटिंग के फीचर्स क्या क्या हो गए, पोटेंशियली लार्ज एंटिसिपेटेड बेनिफिट्स होते हैं, हम ये समझ के चल रहे हैं क्योंकि हम लार्ज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब एक बारी में हम बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी असेट में, तो उससे हमें लार्ज एंटिसिपेटेड बेनिफिट्स होने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम लार्ज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट का पैसा पहले प्रॉपर वापस आएगा ही, और दूसरा कि उससे विद प्रॉफिट वापस आए, तो इसलिए लार्ज बेनिफिट्स होते ही हैं इसमें कैपिटल बजटिंग में। और
हायर रिस्क भी होता है। हायर डिग्री ऑफ रिस्क क्यों होता है इसमें? बिकॉज द लॉन्ग टाइम इज इन, दैट इज वाई हायर रिस्क है कि अगर छोटा प्रोडक्ट हो 1 साल 2 साल का है तो थोड़ा बहुत टाइम हमारे कंट्रोल में है एंड वी नो द सिनेरियोज ऑफ नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। बट इफ यू से कि हमें 10 साल बाद हमें नहीं पता कि क्या चेंजेस होंगे एनवायरनमेंट में या क्या चेंजेस होंगे बिजनेस में या मार्केट में, कि हमारा जिस प्रोडक्ट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किस एफिशिएंसी से काम करेगा नहीं करेगा, ये प्रोडक्ट जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट 10 साल बाद रिक्वायर्ड भी रहेगा कि नहीं रहेगा, लोगों का टेस्ट तो नहीं चेंज हो जाएगा, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स। तो इसलिए हाई रिस्क इन्वॉल्व रहता है। लॉन्ग पीरियड, मैंने आपको बताया लॉन्ग पीरियड इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट में हम या फिक्स्ड एसेट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म के लिए ही होते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं वो करंट एसेट्स होते हैं। और जो हमने इनिशियल आउटले का क्या मतलब होता है? इनिशियल आउटले वो अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट करा है, मतलब इफ यू आर बाइंग एन एसेट, बाइंग अ मशीनरी, तो उस मशीनरी का जो कॉस्ट हुआ वो इनिशियल आउटले हुआ। इनिशियल आउटले पहले हमने जितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया। एंड द एंटिसिपेटेड रिटर्न मतलब जो हम अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें रिटर्न उस पर मिलेंगे, उसमें ज्यादातर टाइम भी लॉन्ग होता ही है। ऐसा नहीं है कि हमने आज मशीनरी खरीद ली तो वो हमें कल से ही एक रिमार्केबल बहुत अच्छा प्रॉफिट देने लग जाएगी। इट माइट टेक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट रिटर्न को कैलकुलेट करने का टाइम हम एनुअल रखेंगे कि 1 साल में हमें इस पर्टिकुलर चीज से, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से कितना फायदा हुआ। ऐसा नहीं कि हम डे वाइज उसका प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स होते हैं, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं। इफ यू थिंक दैट फ्रॉम टुडे आई एम इन्वेस्टेड 10 lakhs इन अ मशीन एंड टुमारो कल मेरे को वापस 10 लाख मिल जाए और परसों से वो मुझे बेनिफिट करके देने लग जाए, दैट इज इम्पॉसिबल in capital budgeting. So we should assume and we should know कि it would be long term return होगा, इसका जो है ये हमें long term return देगा। So we have to be patient enough on this. इरिवर्सिबल इन नेचर इसलिए होता है क्योंकि एक बार जब हमने कुछ भी ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया तो देर इज नो गोइंग बैक। बोलते ना, देर इज नो गोइंग बैक मतलब वो फिर वापस नहीं आ सकता। जो पैसा एक बार हमने लगा दिया वो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे बेनिफिट्स आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े हर साल में होंगे, वैसे ही वापस आएगा। टोटल पैसा एक साथ हम सोचें कि इसको खत्म कर दें, इस प्रोजेक्ट को बंद कर दें और पूरा पैसा वापस मिल जाए, वो नहीं हो सकता। दैट इज व्हाई इट इज इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। सो दैट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। क्लियर है सबको? कैपिटल बजटिंग एंड इट्स फीचर्स समझ में आ गया? मीनिंग दैट कैपिटल बजटिंग इज व्हाट? इट इज अ प्रोसेस बेसिकली डिफाइंड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन in order to calculate that where we will have to invest and in what projects we will have to invest so that it gives us the return. So that's a process basically which we will be identifying that where we will be making the investments. और ये इसके फीचर्स हो गए कि लॉन्ग टर्म रहता है, बेनिफिट्स भी लॉन्ग टर्म रहता है, डिग्री ऑफ रिस्क हाई रहता है और रिवर्सिबल इन नेचर रहता है। यू कैन फर्दर ऑल्सो इलेबोरेट दीज पॉइंट अगर कैपिटल बजटिंग का ही क्वेश्चन आता है आपको, ऑल्दो इट इज वेरी वेरी लेंथी टॉपिक एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो व्हिच आर टू बी कवर्ड लाइक द टेक्निक्स और द मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। बट फीचर्स को अगर आपको कभी कहीं इलेबोरेट करने कुछ बोला जाए या ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, सो यू कैन इलेबोरेट दीज 4 पॉइंट्स फर्दर इन योर ओन लैंग्वेज। Now if we discuss what are methods of capital budgeting, आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो कैपिटल बजटिंग उसके आगे मेथड्स ही लिखा हुआ है, मेथड्स या टेक्निक्स, दो द सेम थिंग। अगर आपको क्वेश्चन टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग आता है तो भी आप मेथड्स यही डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। सो मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग आर डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स। कुछ हैं जो हमने पुराने मेथड्स हम उसको टर्म करते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स, कुछ है हमारे पास जो कि मॉडर्न मेथड्स टेक्निक्स हैं। तो जो पहले यूज हुआ करती थी, बहुत पहले जो यूज हुआ करती थी, दोज आर ट्रेडिशनल अप्रोचेस और दी ट्रेडिशनल मेथड्स और दी ट्रेडिशनल टेक्निक्स, जो कि दो हैं। पे बैक पीरियड मेथड, पीबीपी, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे पीबीपी। और एक और जो पुराना मेथड है हमारे पास वो है काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ARR। So PBP and ARR are the traditional methods or the old methods. And the NPV, net present value को हम NPV भी बोलते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड एक नेक्स्ट मेथड है विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मॉडर्न मेथड्स या न्यू मेथड्स हम बोल सकते हैं। एंड IRR इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हम IRR पहले भी पढ़ चुके हैं किसी टॉपिक में, आई थिंक मैंने आपको वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बताया था IRR को कैलकुलेट कैसे करना है, देयर वाज अ फॉर्मूला टू इट, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू नॉन, इसमें भी हम दोबारा पढ़ेंगे। सो ट्रेडिशनल मेथड्स 2 हो गए, मॉडर्न मेथड्स 3 हो गए, NPV, PI एंड IRR मॉडर्न मेथड्स। सो ये सारे मेथड्स अब 1 by 1 हम पढ़ेंगे। There would be a formula for it
रिमेंबर दैट फॉर्मूला फॉर ऑल दी मेथड्स, और आपको वो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके किसी एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से दिखाना भी पड़ेगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड या दिस इज व्हाट इट गिव्स through this method, what we calculate and how it comes as a return. Okay, so first is payback period method, पीबीपी। इसको हम पे आउट या पे ऑफ पीरियड मेथड भी बोलते हैं, इसके दूसरे नाम जो है पे आउट या पे ऑफ पीरियड मेथड भी होता है। अब जैसे इसके नेम में ही है कि पे बैक पीरियड, पीरियड इज टाइम, पे बैक का मतलब वापस आना, वापस आना, पे बैक वापस आना। हम किसी से ने पैसे लिए, हम बोलेंगे तुम पे बैक कब करोगे, यानी कि वो पैसा वापस कब दोगे, दैट इज पे बैक। सो जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, पे बैक पीरियड का मतलब वो टाइम हमें ये मेथड बताता है जिसमें कि हमें वो टोटल पैसा जो इन्वेस्ट करा है वो कितने टाइम में पे बैक हो जाएगा, वापस आ जाएगा। So it refers to the period in which the project will generate the necessary cash to recover the initial investment. Initial investment मतलब कि कोई हमने मशीनरी खरीदी थी या हमने कोई लैंड खरीदा था जिसमें हमने बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया, से 10 करोड़ का कोई एक इन्वेस्टमेंट किया। अब हम ये मेथड हमको वो कैलकुलेट करता है कि हमें वो 10 करोड़ ऑफ रुपीज जो हमने इन्वेस्ट किया वो कितने टाइम में वापस आ जाएगा, 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, 50 साल में, कितने साल में वापस आएगा कि हम जब काम करेंगे। सो दिस मेथड बेसिकली इज टेलिंग अस द टाइम और द पीरियड इन विच वी विल रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया पे आउट और पे ऑफ पीरियड मेथड भी कहते हैं इसको। और इस मेथड में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं कंसिडर करते हैं। मतलब अगर हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि 5 साल लगेंगे या 10 साल लगेंगे इस पैसे को वापस आने में, तो ऑब्वियसली 10 साल बाद उस पैसे का वैल्यू तो चेंज हो जाएगा, टाइम के हिसाब से वैल्यू ऑफ मनी चेंज हो जाएगा फॉर श्योर, बट हम इसमें वो कंसिडर नहीं करते हैं, हम उसका इफेक्ट इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। और छोटा सा और सिंपल एक फॉर्मूला जो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि जब ये मेथड बना था इट इज टू ओल्ड मेथड कि उस टाइम पर शायद टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर हम लोग नहीं करते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे। तो ये पर्टिकुलर मेथड जो है इसलिए ट्रेडिशनल अप्रोच हो गया है और कोई बिजनेस में बहुत ज्यादा इस मेथड का अब यूज नहीं किया जाता। दिस बिकम्स इट्स ड्रॉबैक, हम इसके डिसएडवांटेजेस में ये चीज पढ़ लेंगे, बट एज अ फीचर ऑफ दिस मेथड ये है कि हम इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं इसमें। एंड द सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब कि अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है तो हम उसको सेलेक्ट करें या नहीं करें वो हमारे ऊपर होगा कि इस प्रोजेक्ट की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। अर्निंग कैपेसिटी कैसे पता चलेगी, अर्निंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब इफ वी वुड वांट टू कैलकुलेट द पेबैक पीरियड थ्रू दिस मेथड, हमें ये पता होना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट से अर्निंग कितना है। अगर अर्निंग नहीं है तो हम ये मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए किसी भी प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए वी आर कैलकुलेशन इज बेस्ड या वी आर डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट टू नो कि क्या है। अगर नहीं है हमारे पास तो हम इसको नहीं कर सकते हैं कैलकुलेट, इस मेथड से हम पेबैक पीरियड कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। फिर इट एम्फसाइजेस मोर ऑन एनुअल कैश इनफ्लोज, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। जो हमने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट किया वो कितना है, एक साल में उस इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा हमारे पास बिजनेस में आ रहा है वो, और क्या लाइफ है उस प्रोजेक्ट की, ये 3 चीजों को हम फैक्टर करते हैं इसमें। इट इन्वॉल्व सिंपल कैलकुलेशन। ये मेथड सबसे इजी मेथड है फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि अभी जो हम आगे जो 4 मेथड बाकी बच गए हैं, पीआई हो गया, आरआर हो गया, आईआरआर हो गया, वो सब मेथड्स के जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं इन कंपैरिजन टू दिस फॉर्मूला। सो दिस मेथड इज द वेरी इजी टू कैलकुलेट, और सिलेक्शन और रिजेक्शन हम इजीली कर सकते हैं अगर हम इस मेथड के थ्रू ये समझ लें। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं और इन्वेस्टमेंट एक ही है कि हमें 1 लाख रुपया ही इन्वेस्ट करना है, 4 प्रोजेक्ट्स हमारे पास है, तो इजीली हम ये देख सकते हैं कि 1 लाख रुपीज जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास कौन से प्रोजेक्ट से सबसे पहले वापस आ रहा है। तो हम इजीली उसको कैलकुलेट करके वी कैन डिसाइड दैट विच प्रोजेक्ट इज easy to go और good to go और best to go, या हम रैंकिंग भी कर सकते हैं उसकी कि ये दिस इज द हाईएस्ट ऑन द फर्स्ट रैंक, दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज गिविंग अस द शॉर्टेस्ट पेबैक पीरियड। अगर हम 4 प्रोजेक्ट्स हमें दिया हुआ है और जिसकी लेंथ सबसे कम है, यानी कि प्रोजेक्ट पीरियड पेबैक पीरियड जिसको भी हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं उस जिसका भी शॉर्टेस्ट होगा उसको हमारा प्रायोरिटी सबसे फर्स्ट रहेगा टू गो विद। पेबैक पीरियड में भी कैलकुलेशन, इसके 2 फॉर्मूले हैं, पेबैक पीरियड के भी 2 फॉर्मूले हैं फर्दर। एक तो वो सिचुएशन हो सकती है अगर हम सोच के देखें कि
हमने कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, एनी अमाउंट से 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है, तो वो 1 लाख रुपीज का रिटर्न जो होगा, या तो वो हमें हर साल बराबर रिटर्न देता रहेगा कि हर साल हमको 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपया हर साल हमें उससे बेनिफिट हो रहा है, तो पे बैक पीरियड कितना हो गया, 10 साल हो गया। 10 साल के बाद हमको टोटल 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्ट किया वो बेसिकली हमको वापस मिल जाएगा। दूसरा सिचुएशन कब होगा कि हमें वही सेम प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से हर साल जो कैश इनफ्लो हो रहा है, यानी कि जो प्रॉफिट हो रहा है या बेनिफिट हो रहा है उसमें इन्वेस्ट करने से, वो अनइक्वल है। मतलब हर साल में अलग अलग अमाउंट हमको बेनिफिट हो रहा है। कभी हमें ज्यादा हो रहा है, किसी साल में हमको 10,000 बेनिफिट हुआ, किसी साल में हमको 50,000 हो गया, किसी साल में हमको 2,000 हो गया। तो वहां पर अनइक्वल जिसमें कैश फ्लो हो रहा है, दैट पर्टिकुलर, तो ये दो सिचुएशंस आ सकती हैं। अब जो भी हमारे पास सिचुएशन है, हमारे प्रोजेक्ट के हिसाब से या हमारा नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से या हमारी एक्चुअल रिटर्न्स के हिसाब से, अगर हमारी इक्वल रिटर्न्स आ रही हैं तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है, अनइक्वल रिटर्न आ रही है तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला है। नाउ व्हाट इज दैट फॉर्मूला? अगर इक्वल कैश इनफ्लो हो रहा है तो हम पे बैक पीरियड कैसे निकालेंगे? इक्वल कैश इनफ्लो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि 1 लाख रुपए की हमने एक मशीनरी खरीदी है और एनुअल कैश इनफ्लो हो रहा है 10,000, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000, सिंपल सा है ये, बहुत ही सिंपलेस्ट। आप इसमें डालेंगे इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है। अनइवन में क्या हुआ कि मुझे नहीं पता कि इस साल हर साल बराबर में कितना, मतलब हमें ये पता होना चाहिए इसमें कि टोटल हमें एवरी ईयर कितना बेनिफिट हो रहा है, बट दैट विल नॉट बी सेम एवरी ईयर, इट विल नॉट बी सेम। अनइवन कैश इनफ्लो हो रहा है, तो क्या ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ पे बैक, बैलेंस टू बी रिकवर्ड, कितना बच गया पैसा हमें रिकवर करने से, डिवाइडेड बाय सी। सो ई प्लस बी डिवाइडेड बाय सी, जिसमें कि आपको ये तीनों चीजें बतानी भी पड़ेगी कि आप ई क्या ले रहे हो, बी क्या ले रहे हो और सी क्या ले रहे हो। ये अनइवन पे बैक पीरियड मेथड है का फॉर्मूला है। अगर हम इसको एक इलिस्ट्रेशन से समझाएं तो दिस इज व्हाट इट इज। के एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट किया 50,000 रुपए का किसी भी प्रोजेक्ट में, और वो हमें 10,000 रुपए बराबर हर साल दे रहा है। मतलब हर साल 10,000 का बेनिफिट हो रहा है उस इन्वेस्टमेंट को करने से। जैसे कि कोई भी एक इन्वेस्टमेंट हमने किया कि हमने कहीं पर अपना फंड पैसा कहीं पर लगाया और हमको कुछ एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, वो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा है बेसिकली उसमें लगाने से वो एनुअल, ऑब्वियसली एवरी ईयर इट विल रिमेन सेम। तो हम यहाँ पर ये चीज ले रहे हैं कि 10,000 हो रहा है वो एवरी ईयर जो एनुअल कैश इनफ्लो हो रहा है। 50,000 हमने टोटल लगाया था, तो 5 साल में हमको वापस मिलेगा ये पैसा। दिस इज वेरी सिंपल, सिंपलेस्ट कैलकुलेशन। ये इवन वाला हो गया कि हमको हर साल 10,000 हो रहा है। अब अनइवन का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अनइवन कैश फ्लोज का, हम ये समझ रहे हैं कि 12,000 हमने एक इन्वेस्ट किया किसी भी प्रोजेक्ट में, 12,000 इन्वेस्ट किया या 12,000 करोड़ इन्वेस्ट किया, व्हाटएवर यू कैन टेक एनी एग्जांपल, एनी फिगर्स, और वो हमको पैसा दे रहा है 2,000 रुपया पहली बार में रिटर्न दिया पहले साल में, यानी कि सेकेंड ईयर में 4,000 दिया, फिर थर्ड ईयर में भी 4,000 दिया, और फिर फोर्थ ईयर में 5,000 दे दिया। फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है। पहले साल में 2,000 दे दिया, फिर नेक्स्ट ईयर में 4, फिर 4, फिर 4, इसको हम टोटल अगर करते जाएं तो फर्स्ट ईयर में तो हमारे पास कैश, ये क्यूमुलेटेड आप देखिए कैश इनफ्लो में फर्स्ट ईयर में टोटल आउटकम था 2,000, सेकेंड ईयर के लास्ट में हमारे पास आ गया 6,000। आप इसको ऐसे क्यूमुलेटिव भी कर दिखाएंगे, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज भी डालते रहेंगे। ये जो आ रहा है फिगर थर्ड वाले कॉलम में, ये जो इधर सेकंड कॉलम में टोटल है उसका क्यूमुलेट करके हम बना रहे हैं, यानी कि 2 + 4 = 6, then 6 + 4 = 10,000, 10,000 + 5,000 = 15,000। इस तरह से समझ आया है क्यूमुलेटेड कैश इनफ्लोज का फिगर कैसे आ रहा है। एनुअल कैश इनफ्लोज को हर साल जो, हाँ जी, एनी इशू विद एनीबडी? दीपक, स्पीक लाउडर, आई कांट हियर यू। Are you saying something? Okay, so I'm continuing. क्यूमुलेटिव हमने फिगर्स ले लिए हर साल में, लेकिन अगर हमें देखा जाए, क्योंकि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 12,000 था, राइट। इस स्लाइड में आप देखिए 12,000 हमने कैश आउटले किया है, यानी कि 12,000 रुपये लगाया था। तो क्या इस पर्टिकुलर टेबल को देख के हमें समझ में आ रहा है कि 12,000 हमें कम मिला होगा, 12,000 हमें कम मिला होगा। थर्ड ईयर में हमको 10,000 मिल चुका है थर्ड ईयर के एंड में,
और फोर्थ ईयर में के एंड में हमको 15,000 मिला, यानी कि देयर इज समवेयर बिटवीन थर्ड टू फोर्थ ईयर कोई टाइम था जबकि हमारा 12,000 हमको टोटल मिल चुका वापस, जो हमारा इनिशियल कैश आउटले था। वो अब हम इसी फिगर्स को इस फॉर्मूले के थ्रू निकालेंगे तो हमें 3.4 ईयर्स मिला, 3 साल प्लस 2,000 डिवाइडेड बाय 5,000, ठीक है। जो 5,000 इज दी टोटल उस साल में कितना आया, और 2,000 जो हमें उस साल से लेना है। तो 3 साल प्लस 2,000 डिवाइडेड बाय 5,000 इज इक्वल टू 3.4 ईयर्स। तो यानी कि 12,000 रुपीज जो हमने इनिशियल इन्वेस्ट किया था वो 3 साल 3.4 ईयर्स में बेसिकली हमको मिला, ठीक है। एक और इलिस्ट्रेशन हम लेके एग्जांपल दे सकते हैं इफ यू वांट। 2 एग्जांपल्स आप इस तरीके से दिखा सकते हैं इफ you think that you would really want to, but अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से लार्ज क्वेश्चन आता है that you have to explain all the techniques, तो आप इसको एक एग्जांपल से भी बताकर फिनिश कर सकते हैं। बट इफ़ यू वांट कि अगर आपको आ जाता है कि इस पर्टिकुलर मेथड से इलिस्ट्रेशन की हेल्प से आप समझाइए, तो फिर आप ये वाला एग्जांपल और इस तरह से एक और एग्जांपल आप देकर इसको मेथड को क्लियरली समझा सकते हैं। बट दिस फॉर्मूला वुड रिमेन सेम। आप चाहें तो इन फिगर्स को भी चेंज कर सकते हैं, चाहे तो पे बैक पीरियड का टाइम 3 साल की जगह 10 साल कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। 15,000 को 15,000 करोड़ भी ले सकते हैं, 10,000 ले सकते हैं, 1.5 लाख ले सकते हैं, जो आपको लगता है 10 करोड़ ले सकते हैं। फिगर्स आप चेंज कर सकते हैं, बट आप बस ये ध्यान रखिए कि जो भी फिगर्स आप ले रहे हैं और इसमें आप प्रॉब्लम को दिखा रहे हैं कि ये इलिस्ट्रेशन 1 है या इलिस्ट्रेशन 2 है, इस पर्टिकुलर इलिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम 1 मैंने आपको दिखाया है इसमें हम 3 प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, मॉडल ABC जो भी है, और हमने तीनों ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं कि 90,000 की है, यानी कि हमने 3 मशीनरीज दी हैं जो कि 90,000 की ही कॉस्ट है तीनों की, और 4 साल में हमें कितना पैसा वापस आ रहा है ये हमने फिगर्स इमेजिनरी कुछ भी डाल दिए हैं। तो आप भी डाल के आप ये फिगर दिखा सकते हैं। तो 90,000 हमें सबसे पहले कौन से वाला प्रोजेक्ट दे रहा है वो हमें ये देखना है। तो टोटल हम कैलकुलेट करके हमें समझ आ जाएगा मॉडल ए दे रहा है या बी दे रहा है या सी दे रहा है, हम उस तरह से इनकी रैंकिंग भी कर सकते हैं। सेकंड में भी आप देख सकते हैं, सेकंड में आपको प्रोजेक्ट ए जो है वो इवन वाला दिखा रहा है, इवन वाले फॉर्मूले से हम दिखाएंगे क्योंकि उसमें जो हमें इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिल रहा है वो हर साल बराबर मिल रहा है। बी, सी और डी जो है वो अनइवन है, जिसमें कि हमें अलग अलग हर साल में प्रॉफिट दिख रहा है। और प्रोजेक्ट डी जो है अगर आप इसमें देखें तो वो बेस्ट प्रोजेक्ट है क्योंकि 15,000 रुपया इन्वेस्टमेंट लगाने से हमको 8,000 रुपया डी प्रोजेक्ट है जो फर्स्ट ईयर में ही वापस कर दे रहा है, सेकेंड ईयर में 6,000 वापस कर दे रहा है। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो हमें ऑलमोस्ट फर्स्ट 2 ईयर्स में मिल ही गया है। 14,000 इसने हमें वापस दे दिया है विद इन 2 ईयर्स। सो प्रोजेक्ट डी इज एट द फर्स्ट रैंक। सबसे पहले हमको कौन सा प्रोजेक्ट वापस दे रहा है पैसा, पे बैक पीरियड सबसे कम इन 4 प्रोजेक्ट्स में सबसे कम जो है वो डी प्रोजेक्ट का है। Got it? So this way if you would rank it, then D project can be at the first rank, then project A can be on the second rank because in 3 years it is returning us, and then project B can be on the third rank क्योंकि ये भी हमें project C से तो better दे रहा है, और project C is the worst, we should not choose क्योंकि ये हमें 3 साल में सिर्फ 7,500 रुपये वापस दे रहा है, हमने इन्वेस्टमेंट 15,000 करा। इवन ये 5 इयर्स में भी हमको टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहा है, जो हमने इन्वेस्ट किया था वो पे बैक नहीं कर रहा है इवन इन 5 इयर्स। सो यू कैन रैंक दीज प्रोजेक्ट्स। आप 4 की जगह 6 दिखाना चाहते हैं वो भी दिखा सकते हैं, 3 दिखाना चाहते हैं आप 3 भी दिखा सकते हैं। सो द रैंकिंग थ्रू पे बैक पीरियड मेथड, द रैंकिंग ऑफ दीज 4 प्रोजेक्ट्स कुड बी D at the first, A at the second, B at the third and C at the fourth. क्लियर हो गया? दिस पर्टिकुलर फर्स्ट टेक्निक और द मेथड इज कंप्लीटेड। फॉर्मूला वाइज भी, इलस्ट्रेशन वाइज भी, कुछ और एग्जांपल्स देने उसके हिसाब से भी ये दिस इज कंप्लीटेड। सो अगर इसमें कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो बताइए मुझे। इस मेथड के अपने कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं क्योंकि ये सबसे पुराना मेथड है। बहुत एक इजी सा फॉर्मूला है इसका, दिस डिवाइडेड बाय दिस करके हम ईयर्स निकाल रहे हैं। इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू कैलकुलेट है। तो इसका एक ही सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, फाइंडिंग आउट द प्रोजेक्ट विच विल जनरेट सब्सटैंशियल कैश इनफ्लोज इन द अर्लियर ईयर्स। ये हमें ये भी बता रहा है कि किस प्रोजेक्ट से अच्छा ज़्यादा कैश फ्लो, सब्सटैंशियल कैश फ्लो हमें शुरू के सालों में हो रहा है। जैसे हमें पिछले वाली स्लाइड में शुरू में ही दिख गया था क्योंकि डी प्रोजेक्ट हमको सब्सटैंशियल कैश इनफ्लो दे रहा है। Got it?
substantial cash inflow there. So this particular method also has the advantage that it gives us the substantial cash inflows. We can calculate, we can find the project which is giving us the substantial cash inflows in the earlier years of our investment. It also helps us in weeding out the risky projects. जैसे कि ये पर्टिकुलर सेशन से हमने आइडेंटिफाई कर लिया पे बैक पीरियड का कि सी प्रोजेक्ट जो है वो तो बिल्कुल रिस्की है, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए. तो अगर वी आर अ गुड फाइनेंशियल मैनेजर देन वी वुड through this method we can understand that project C is not helpful for us, yeah, it is not beneficial for us, so we can weed it out or we can throw it out from our list कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए. This method is finding out this method also helps us finding out the project that makes the early realization of the funds, कि जिस प्रोजेक्ट से हमें सबसे ज्यादा कम टाइम में या अर्लियर हमें रियलाइजेशन हो रहा है फंड्स का. दिस आल्सो हेल्प्स अस टू एनहांस द लिक्विडिटी. लास्ट इसका एडवांटेज ये है कि इट इज दिस मेथड इज वेरी हेल्पफुल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कैलकुलेशन. यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज का कोई पर्सन हमको स्पेशली रखने की जरूरत नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में कि हमें कोई पर्सन अपॉइंट करना पड़े जो ये हमारे लिए काम करके दे, कैलकुलेशन करके दे. और because simple mathematical formula, it can be done by anybody, it can be done by the finance team itself. जो in-house finance team है business में वो calculate कर सकती है. So cost बहुत ज़्यादा इसमें involve नहीं है for the calculation because it has an easy calculation. Okay, and disadvantages क्या है PBP के? क्योंकि this is very, just give me a minute. Okay, so it ignores, disadvantages ये है कि it ignores all the cash inflows after the payback period. अब हम सिर्फ इसमें payback period क्योंकि पीरियड ही कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, कितने टाइम में वापस पैसा आ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है वो नहीं हम कैलकुलेट कर रहे हैं. क्या हमें बेनिफिट भी होगा? हम कोई भी चीज में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम पैसा कमाने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ना कि वो पैसा जो इन्वेस्ट किया सिर्फ उसको वापस लाने के लिए. जो हमने पैसा अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और हमें 5 साल में 10 लाख ही वापस आ रहा है तो बेनिफिट क्या हुआ? So it is ignoring the cash flows after the payback period. हमने सिर्फ ये कैलकुलेट किया, ठीक है 5 years में आया या 3.4 years में आया, 3.5 जो भी years में वापस आया, बस हमने वो पीरियड कैलकुलेट कर लिया. उसके बाद जो पैसा वापस आ रहा है उसको हम प्रॉफिट में कंसिडर नहीं कर रहे हैं. सो डज नॉट कंसिडर द टोटल बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट. टोटल बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट हम नहीं देखते. अगर उस प्रोजेक्ट में से हमको 10 साल 20 साल तक का बेनिफिट होता जा रहा है तो हम बाकी के बेनिफिट्स को देखेंगे नहीं. अगर हमारा टोटल पे बैक पीरियड 5 साल में वापस पे बैक पीरियड 5 साल है या टोटल जो पैसा है वो वापस आ गया 5 साल में, तो उसके बाद जितना पैसा आ रहा है वी आर नॉट कंसिडरिंग. आपने देखा उस फॉर्मूले में कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं था कि जिसमें कि हम बाद वाली इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करें. इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो मैंने फीचर में बताया था कि ये डिसएडवांटेज है इसका कि उस टाइम पीरियड, उस टाइम में जब ये हम कैलकुलेट करते थे या पे बैक पीरियड को फॉलो करते थे तब टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम कंसिडर नहीं करते. तो इस फॉर्मूले में हम कहीं ले ही नहीं रहे, उसको फैक्टर ही नहीं कर रहे हैं, हालांकि करना चाहिए, अदरवाइज इट डजंट गिव द राइट आइडिया, क्योंकि टाइम के हिसाब से वैल्यू ऑफ मनी तो चेंज होता ही है. इट ओनली फाइंड्स द रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, नॉट दी प्रॉफिटेबिलिटी. सिर्फ हम रिकवरी कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि एक ड्रॉबैक तो यही है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ में करते हैं तो हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, ना कि सिर्फ इसलिए कि हमने कर दिया इन्वेस्टमेंट और हमें वो पैसा टोटल वापस मिल जाए. पैसा तो हमारे पास अदरवाइज भी पड़ा ही रहता, अगर हम इन्वेस्ट नहीं करते तो भी टोटल पैसा हमारे पास ही रहता. तो फिर इन्वेस्टमेंट करने का पर्पज़ क्या था? तो इन्वेस्टमेंट जो करने का पर्पज होता है प्रॉफिटेबिलिटी, वो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से या मेथड से हम लोग कंसिडर इसमें नहीं करते. तो वो नहीं, इसका रिकवरी ये नहीं बताता है, प्रॉफिटेबिलिटी को कंसिडर नहीं करता है. नेक्स्ट ड्रॉबैक इसमें ये है कि इट इग्नोर्स द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट. नाउ स्क्रैप वैल्यू क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं कि स्क्रैप वैल्यू क्या होता है. जैसे हमने किसी भी एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाया, हम मशीनरी की बात कर रहे थे कि हमने एक मशीन परचेज की है, उस मशीन की कॉस्ट हमें पता है कि ये है और हमें पता है उसकी लाइफ ये है, 10 साल ही काम कर सकते हैं उससे. तो मशीन को हम सपोज करिए एक फ़ोन इज ऑल्सो अ मशीन. हमने फ़ोन में इन्वेस्टमेंट किया और फ़ोन का हमको पता है कि इसकी लाइफ जो है वो 3 years या 4 years है, मैक्सिमम 4 years है. तो हम 20,000 का अगर एक फ़ोन ले रहे हैं और वो 4 years का उसका लाइफ है, तो 4 साल का मतलब ऑन एन एवरेज 4 साल में वो टोटल वैल्यू हमें वापस मिल जाएगी. अगर वो 5 साल चलता तो हमें कुछ बेनिफिट होता, राइट. बट
अगर 4 इयर्स के बाद भी अब फोन जो है दैट पर्टिकुलर मशीनरी या वट एवर जिसमें भी हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो चीज अपना काम तो नहीं करेगी ना, फोन विल नॉट वर्क एज फोन आफ्टर 4 इयर्स, क्योंकि उसकी लाइफ 4 ईयर थी। लेकिन आफ्टर 4 इयर्स देयर वुड बी समथिंग विच विल बी विथ यू, द पार्ट ऑफ मशीनरी विच विल बी विद यू एज अ स्क्रैप, जिसको हम बोलते हैं कि ये अब स्क्रैप हो चुका है। मतलब इसका काम तो नहीं है, मशीन अपना जो काम जिसके लिए हम लाए थे वो तो नहीं करेगी, बट देर इज समथिंग विच विल रिमेन विद यू एज स्क्रैप, और हम उसको स्क्रैप में बेचते हैं, कुछ चीजें बेच देते हैं, जैसे हम पुरानी चीजें हो जाती हैं तो उससे हमें कुछ वैल्यू मिलती है, वो स्क्रैप वैल्यू होता है। तो उस मशीनरी को बेच बेच के कुछ उसका वेट होगा, कुछ आयरन उसमें से निकलेगा या कुछ और भी निकलेगा। सो दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज ऑल्सो प्रॉफिट जो आपको उसी प्रोजेक्ट से मिला या उस मशीनरी को खरीदने से मिला स्क्रैप वैल्यू से भी, तो वो इसमें नहीं हम कहीं भी कंसिडर करें। स्क्रैप वैल्यू आपने देखा होगा, हमने कहीं भी इस फॉर्मूले में स्क्रैप वैल्यू को कंसिडर नहीं किया ना लिया, तो इसका एक ये भी डिसएडवांटेज है कि स्क्रैप वैल्यू को ये कंसिडर ही नहीं करता है। Give me a minute, meeting is about to over, so I'm going to click your attendance first and then we will continue अगर टाइम बचेगा तो। Okay, so today 27 of you have attended this class. So this is done. PBP is completed. फॉर्मूले के साथ इवन अनइवन क्या बेनिफिट है, क्या कैलकुलेट करता है, ये पीरियड कैलकुलेट करता है पे बैक का, और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है कैपिटल बजटिंग का, ये सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। किसी को इसमें अब तक कुछ क्वेश्चन है? We'll be moving to next ट्रेडिशनल टेक्निक विच इज ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। जैसा कि ये नेम से ही बताया जा रहा है कि एवरेज निकाल रहे हैं हम, और जहां पर हम रेट आ जाता है, रेट बेसिकली इज एक्सप्रेस्ड कि 20% है, 10% है, 5% है, वट एवर, इट इज कैलकुलेटेड इन दी परसेंटेज और इट इज एक्सप्रेस्ड इन दी परसेंटेज। तो और हम जो भी चीज इसमें लेंगे, इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे वो हम एवरेज वैल्यू पुट करेंगे, बिकॉज इट इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, हम इसमें ऑन एन एवरेज निकालेंगे कि हमें एवरेज हर साल में कितना पैसा वापस मिल रहा है। किसी भी प्रोजेक्ट से हम अनइवन भी अगर मिल रहा है, किसी में ज़्यादा, किसी साल में कम मिल रहा है, किसी में बहुत ज़्यादा साल, किसी ईयर में बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, किसी ईयर में बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है, तो उन सब का टोटल करके एवरेज निकाल के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कितने ईयर्स का हुआ, वो एक एवरेज मिल जाता है कि ऑन एन एवरेज इतना रिटर्न हमको मिल रहा है। दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर मेथड विल गिव अस। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमको बता देगा कि हर साल में ये प्रोजेक्ट हमको ऑन एन एवरेज इतना परसेंट रिटर्न वापस देगा। इतना परसेंट का मतलब 20%। अगर हमने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो यानी कि 20,000 ऑन एन एवरेज हमको वापस कर रहा है ये हर साल में। अब 20,000 हो सकता है एक साल में ना भी करे, किसी में 10 भी करे, किसी में 30 भी करे, बट एवरेज देता है ये हमको। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR। इट इज इंट्रोड्यूस टू ओवरकम द डिसएडवांटेज। कुछ डिसएडवांटेजेस जो लास्ट वाले मेथड की थी और हम उसमें देख रहे थे, जैसे कि सलवाज वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर रहा था या बहुत सारी चीजें नहीं कैलकुलेट कर रहा था, वो इसमें हम सब कुछ करेंगे। उसमें हम सारे साल की एवरी ईयर की अर्निंग्स को कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम करते हैं, उसमें हम नहीं कर रहे थे। सो इट also considers all years earnings of the project. इट इज बेस्ड ऑन कन्वेंशनल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पे ये बेस करता है, क्योंकि इसमें हम डेप्रिसिएशन, टैक्स, एवरीथिंग हम लेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि हम रेट कैलकुलेट कर रहे हैं, किस रेट से वापस आएगा, तो ये परसेंटेज में हमको देता है। Rate of return is expressed as percentage of the earnings of the investment in a particular project। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम डेप्रिसिएशन और टैक्स, जो भी हमारा पे होगा, टैक्स हमें देना पड़ेगा, या डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है एक पर्टिकुलर चीज का, हम वो सब कुछ इसमें कंसिडर करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होता है वो आप मुझे बताइए अगर किसी को पता है तो। डेप्रिसिएशन बेसिकली इज द वियर एंड टियर और द लॉस जो हमें होता है किसी भी एक फिक्स्ड एसेट की, जो एक नॉर्मल वेयर एंड टियर होता है, यानी कि लॉस होता है, उसको यूज करने से वो डेप्रिसिएशन होता है। कि मशीनरी कुछ पुरानी तो होती है ना, तो उसकी वैल्यू जाती है, हर साल कुछ उसकी वैल्यू घट जाती है, तो वो डेप्रिसिएशन होता है। मीटिंग इज अबाउट टू ओवर नाउ। मैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न से ही नेक्स्ट कल स्टार्ट करूंगी, नेक्स्ट लेक्चर से।
किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं तो अभी भी पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आप दोबारा से क्वेश्चन भी फर्स्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं, देन वी कैन